Hello dear students, welcome to Creative and Critical Thinking Part 2 Mathematics. There are 25 questions. You have to write the answer in your copy. After 25 questions, you will be told the answer. So, let's start. Question number 1. What can you measure with the scale below? Option A, height. Option B, time. Option C, length. Option D, weight. Question number 2. See the weighing shown below. The weight of this could be option A, 1 kg. Option B, 500 gram. Option C, 250 gram. Option D, 20 gram. Question number 3. The unit grams could be used to tell option A, the number of mangoes in a box. Option B, the space occupied by a book. Option C, how heavy your pencil box is. Option D, the thickness of a dictionary. Question number 4. Sony wants to put 50 rupees in her piggy bank on the first of every month. If she starts in March, how much would she have by the end of June? Option A, 150 rupees. Option B, 250 rupees. Option C, 200 rupees. Option D, 400 rupees. Question number 5. Some of Myraxi's cats were playing in a box. When she tried to count, all she could see were legs. She counted 76 legs. How many cats are there in the box? Option A, 12 cats. Option B, 9 cats. Option C, 19 cats. Option D, 18 cats. Question number 6. How many grams of rice will remain in this packet after 100 grams are used up? Option A, 100 gram. Option B, 150 gram. Option C, 900 gram. Option D, there will be no rice left. Question number 7. Some children of Samir's class were standing in a single height-wise row. Samir's position in the row from both the ends was 8. How many children were standing in the row? Option A, 8. Option B, 16. Option C, 15. Option D, 17. Question number 8. Which is the greatest 3-digit number that has 3 different digits? Option A, 998. Option B, 987. Option C, 978. Option D, 901. Question number 9. Deepika bought 4 nut bars. For the same amount of money, how much crunch bars could she have bought? Option A, 2. Option B, 4. Option C, 11. Option D, 8. Question number 10. Anil and Kamal bought a crunch bar and a fruit bar and shared the cost equally. How much did each one pay? Option A, 11 rupees. Option B, 24 rupees. Option C, 12 rupees. Option D, 13 rupees.
Question number 11. Which of the following would be just enough to buy the crayon box and pencil shown below without leaving any change? Option A, 3 5 rupee coins. Option B, 2 10 rupee notes. Option C, 10 50 paise coins. Option D, 13 2 rupee coins. Question number 12. Shown below are two bundles with 16 sticks in each. If you untie the sticks and put them in bundles of 8 each, how many bundles will you get? Option A 16, option B 8, option C 4, option D 2. Question number 13. 6 bags of equal weight contains 72 kg rice in all. How much rice is there in one bag? Option A 12, option B 32, option C 16, option D 8. Question number 14. The teacher brings a big bag of crayons to distribute to her class of 30 children. If she plans to give one bundle of 8 crayons to each child and has no extra crayons, how many crayons are there in the bag? Option A 38, option B 30, option C 39, option D 240. Question number 15. Vika's room has 2 regular chairs, 1 simple table and 2 3-legged stools. There is no other furniture. How many legs are there altogether in the furniture in the room? Option A 18, option B 20, option C 15, option D 5. Question number 16. Which digit should come in place of this so that the following multiplication is correct? Option A 7, option B 4, option C 1, option D 3. Question number 17. Which of the following gives the largest quotient? Option A 478 divided by 5, option B 478 divided by 9, option C 478 divided by 7, option D 478 divided by 12. Question number 18. Shreyas has only 10 rupee notes with him. How many notes should he give the shopkeeper to buy 6 balls costing 8 rupees each? Option A 2, option B 4, option C 5, option D 1. Question number 19. The 4 boxes shown below contain socks and the total number of socks in each box is given. The socks are complete pairs in all the boxes except one. Which box has one sock missing? Option A box 1, option B box 2, option C box 3, option D box 4. Question number 20. There are 3 blocks made of different material and of different colors, red, white and black. They are weighed twice with a balance and the results are as below. What can we be sure about from these weighings? Option A, block B is the heaviest. Option B, block W is the heaviest. Option C,
block R is the lightest. Option D, block B is lighter than block R. Question number 21. In the weighing shown below, each orange has a mass of 125 grams. The scale is balanced exactly. What will be the weight on the right side of the scale? Option A 4 kg, option B 1 kg, option C half kg, option D 125 grams. Question number 22. Look at the weighing scales shown below. Which statement about the weight of box 2 is true? Option A, it is equal to 1 kg. Option B, it is more than 1 kg. Option C, it is less than 1 kg. Option D, it is equal to 500 grams. Question number 23. Which of the following is likely to weigh about 1 kilogram? Option A, a crayon box. Option B, a girl of class 4. Option C, a large size t-shirt. Option D, a bottle filled with water. Question number 24. Sanoja put 4 blocks, one on top of other as shown, and found that the pile was 32 centimeters high. How high would the pile be if she puts one more block on top? All the blocks are of the same size. Option A 128 centimeter, option B 64 centimeter, option C 40 centimeter, option D 36 centimeter. Question number 25. One apple and 2 oranges together weigh 330 grams. If each orange weighs 100 grams, how much does the apple weigh? Option A 30 grams, option B 100 grams, option C 110 grams, option D 130 grams. Okay, dear students, now check your answers. प्यारे बच्चों, आइए थोड़ा उत्तर को और एक बार देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक जी लिखा है ग्राम, तो ये हमारा वेट। इसमें देख सकते हैं ये जो पिक्चर है ये यहाँ पे है।
तो चित्र में देखते हैं ये 500 ग्राम और ये नीचे है, मतलब ये 500 ग्राम से ज़्यादा है, तो उत्तर होगा 1 kg। अब इसमें देखते हैं यूनिट्स ऑफ ग्राम्स। ग्राम्स किस में यूज होगा? जैसे हाउ हैवी योर पेंसिल बॉक्स, तो हमारा उत्तर ऑप्शन सी, कितना वजन है वो ग्राम में देखते हैं। सोनी वांट्स टू पुट 50 रुपीज़ इन हर पिगी बैंक ऑन द 1st of every month। हर महीने के पहले वो 50 रुपया जमा करेगी। सो 1 मार्च में कितना जमा करेगी? 50 रुपये। उस तरह 1 अप्रैल में कितना जमा होगा? वो भी 50 रुपये। अभी अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? ओके, 1 अभी मई, 1 मई में भी 50 रुपये। आफ्टर में 1 जून, उसमें भी 50 रुपये। अब देखिए 4 मंथ है, ये मार्च का 50, अप्रैल का 50, मई महीने का 50 और जून का 50। अब चारों को मिलाने से कितना होगा? हमारा उत्तर सी, 200 रुपये। अब 5 नंबर देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 76 लैक्स। जो मीनाक्षी काउंट की थी कैट्स 76 लैक्स हैं, तो 1 कैट हैज़ 4 लैक्स, टोटल 76 लैक्स और 76 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 19, सो 19 कैट्स। बासमती राइस 1 kg का एक पैकेट है। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम में से अगर 100 ग्राम यूज हो गया, उसका इस्तेमाल किए, तो कितना बचा हमारे पास? माइनस करते हैं, हमारे पास बचा 900 ग्राम। सो आंसर ऑप्शन सी, 900 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, ये जो बच्चा है 8th नंबर पोजीशन में खड़ा है, तो उसके इस तरफ कितने बच्चे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे होंगे, तभी इसका नंबर 8 आया। तो उसके बाद कितने होंगे? इसका 8 पोजीशन है, 8 के बाद 9 नंबर बच्चा, 10 नंबर बच्चा, 11 12 13 14 और 15, इतने बच्चे होंगे। तो इधर से 7 बच्चे और ये इसका पोजीशन 8, और इधर से देखेंगे यहाँ कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और तभी इसका पोजीशन 8 आया। पीछे से भी 8 पोजीशन इसका आया, आगे से भी 8 पोजीशन, पीछे से भी 8 पोजीशन, सो टोटल 15 बच्चे। विच इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट हैज़ 3 डिफरेंट डिजिट्स। देखिए हमारे पास 998 और 987 है। 998, इसमें आप देखेंगे 9 2 बार आया, तो ये डिफरेंट डिजिट्स नहीं है, सेम डिजिट्स। बट यहाँ पे देखिए 987, 3 डिफरेंट डिजिट्स है, तो हमारा उत्तर यही होगा 987। अब देखिए दीपिका बॉट 4 नट बार्स फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी, हाउ मच क्रंच बार्स कुड सी हैव बट? नट बार 22 रुपीज़ इंटू 4 इज इक्वल टू 88 रुपीज़। 4 नट बार्स खरीदी थी और उसी 88 रुपीज़ में उसको खरीदना है क्रंच बार, जो कि 11 रुपीज़ का होता है। सो 88 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 8। तो 8 क्रंच बार्स वो खरीद सकती है। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे चॉकलेट्स एंड क्रंच बार 11 रुपीज़ एंड फ्रूट बार 13 रुपीज़। तो अनिल और कमल जो खरीदे हैं, एक क्रंच बार खरीदे और एक फ्रूट बार, तो दोनों का अमाउंट कितना होगा? 11 + 13 दैट इज 24 रुपीज़। अब 24 रुपीज़ को दोनों को देना पड़ेगा। कैसे देंगे? इक्वल शेयर करेंगे।
तो 24 डिवाइडेड बाय 2, दोनों इक्वल देंगे, इसलिए आंसर होगा 12 रुपीज़। दोनों को 12 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है एक क्रेयॉन बॉक्स जिसका रेट है 13 रुपीज़, और एक पेंसिल है उसका रेट है 2 रुपीज़। सो टोटल 13 + 2 = 15 रुपीज़। अब 15 रुपीज़ देने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सो 15 के लिए ऑप्शन ए में जैसे दिख रहा है 3 5 रुपी कॉइन्स, तो 3 5 रुपी कॉइन्स कितना होता है? 15 रुपीज़। और इसमें ऑप्शन बी में ये 20 रुपीज़। ऑप्शन सी अगर देखेंगे ये कितना होगा? ऑप्शन सी में ये होगा 5 रुपीज़। और ये 13 2 रुपी कॉइन्स मीन्स 13 2 जा 26 रुपीज़। सो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए 3 5 रुपी कॉइन्स = 15 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें 2 बंडल दिया है, 2 बंडल स्टिक्स है और 16 स्टिक्स ईच। इसमें 16 स्टिक्स है और इसमें भी 16 स्टिक्स है। क्वेश्चन है, अगर आप इसको अनटाई करेंगे, खोल देंगे इसको और बंडल बनाएंगे कितने का? 8 का बंडल बनाएंगे। इसको एक 8 स्टिक्स का एक बंडल बनाएंगे और एक बनाएंगे, इसको भी एक 8 स्टिक्स का बनाएंगे, इसको भी 8 स्टिक्स का बनाएंगे। तो हमारे पास कितना बंडल्स बनेगा? 1 2 3 4। तो हमारा आंसर 4 बंडल्स। क्वेश्चन नंबर 13, 6 bags of equal weight contain 72 kg राइस इन ऑल। 6 बैग्स में 72 kg राइस है। ये 6 राइस बैग्स 1 2 3 4 5 6, इन सबको मिला के हमारे पास है 72 kg राइस। तो एक में कितना होगा? 72 डिवाइडेड बाय 6 बैग्स = 12। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 12। क्वेश्चन नंबर 14, 30 चिल्ड्रन आर देयर इन ए क्लास। एक टीचर आई और 30 बच्चों को क्रेयॉन्स देने वाली है। इन 1 बंडल देयर आर 8 क्रेयॉन्स। एक बच्चे को 8 क्रेयॉन्स मिलेगा। सो एक क्लास में 30 बच्चे थे। सो 8 क्रेयॉन्स × 30 = 240। आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, 2 रेगुलर चेयर्स। देखते हैं 2 रेगुलर चेयर्स, जो हमारे घर में चेयर्स होते हैं ना, उसके लेग कितने होते हैं? देखो 4 लेग्स होते हैं। सो 2 चेयर्स, सो टोटल 8 लेग्स। अब और क्या है विकास के घर में? 1 सिंपल टेबल, एक टेबल है। इसका देखो 4 लेग्स और 2 3 लेग स्टूल। ऐसा स्टूल है जिसमें 3 लेग होता है। सो ऐसे 2 स्टूल है उसके पास, तो टोटल 6 लेग्स। देखो ऊपर कितना है? 8 legs, here 4 legs, here 6 legs. Now add total 18 legs. Option A. Which digit should come in place of this? ये जो पिक्चर है यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा तो हमारा मल्टीप्लिकेशन सही रहेगा। देखो नीचे 7 है, 7 टेबल देखते हैं। 7 टेबल में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, then 21, then 28, then 35, then 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। ओके, अब 7 कितना में इंटू हुआ तो नीचे 1 आया है। देखो कितना में इंटू होना चाहिए तब जाके नीचे 1 आया। इसमें देखते हैं किसका 1 प्लेस में 1, इसमें देखो 21 में एक है और किसी में 1 हमको नहीं दिखा। ठीक है, सो
21 नीचे आएगा, तो 7 3 जा 21। लार्जेस्ट क्वेश्चन जानने के लिए हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने से ऑप्शन ए होगा 95.6, ऑप्शन बी 53.11, ऑप्शन सी 63.28, ऑप्शन डी 39.83। यहाँ पे हम देख सकते हैं 478 जो 5 से डिवाइड हुआ तो लार्जेस्ट क्वेश्चन आया। Shreyas has only 10 rupee notes. And how many notes should he give the shopkeeper to buy 6 balls costing rupees 8? So 6 8 ja 48 rupees। 48 rupees का सामान लाना है तो उसके पास 10 रुपीज़ का नोट है, तो कितना देगा दुकानदार को? 48 रुपीज़ के लिए वो 50 रुपी देंगे, मीन्स 5 10 रुपी नोट। 4 बॉक्सेस आर देयर। बॉक्स नंबर 1 में 28 सॉक्स हैं, बॉक्स नंबर 2 16 सॉक्स, बॉक्स नंबर 3 34 सॉक्स, बॉक्स नंबर 4 25 सॉक्स। तो कौन सा बॉक्स में एक सॉक्स मिसिंग है? तो यहाँ पता लग सकता है 25 सॉक्स है तो एक मिसिंग है, क्योंकि हम जब सॉक्स खरीदते हैं तो हम पेयर्स में लेते हैं, यानी इवन नंबर्स पे लेते हैं, और 25 ऑड नंबर है। यहाँ पे देखेंगे रेड मीन्स आर, वाइट डब्ल्यू, ब्लैक बी, 2 विंग्स। यहाँ पे एक बैलेंस हो रहा है, देखो यहाँ पे एक ब्लैक है और दिस साइड में रेड ब्लॉक है, इसमें डब्ल्यू वाइट ब्लॉक, इसमें 2 बार वेट किया गया है। फर्स्ट विंग रेड इज लाइटर, सेकेंड वन देयर इज ऑल्सो रेड इज लाइटर। हम अगर दोनों को एक साथ देखेंगे तो क्या होगा? ब्लॉक बी इज द हैवीएस्ट, यहाँ पे है फर्स्ट विंग में। सेकेंड वन में क्या हुआ? ब्लॉक डब्ल्यू इज हैवियर, ब्लॉक डब्ल्यू इज हैवीएस्ट। अब दोनों में देखने से क्या होगा? जो आर है ये दोनों में लाइटेस्ट है, ब्लॉक आर इज द लाइटेस्ट। और ऑप्शन डी ब्लॉक बी इज लाइटर देन ब्लॉक आर, दैट इज रॉन्ग। सो इन बोथ द केसेस बिकॉज दे वेट ट्वाइस, 2 बार, दोनों बार देखने से क्या होगा? ये ब्लॉक R is the lightest। क्वेश्चन नंबर 21 का बैलेंस देखें। यहाँ पे 4 ऑरेंज है जिनका वजन 125 ग्राम, 4 है तो 125 इंटू 4 मल्टीप्लाइड ये होगा 500 ग्राम। सो 500 ग्राम को और क्या बोलते हैं? इसको और बोलते हैं हाफ kg। यहाँ पे 2 वेइंग स्केल्स है, ये बॉक्स 2, ये है बॉक्स 1, इट इज़ 1 kg, बॉक्स 1 kg। अब बॉक्स 1 और 2 को देखिए, बॉक्स 1 kg, अब बॉक्स 2 क्या हुआ? वो नीचे आ गया है, मीन्स ये थोड़ा उससे हैवियर है, सो इट इज़ इक्वल टू 1 kg नहीं होगा ऑप्शन ए में जो दिया है। ऑप्शन बी में दिया है इट इज़ मोर देन 1 kg, यस इट इज़ मोर देन 1 kg, इसलिए वो नीचे आया। ऑप्शन सी में क्या दिया है? इट इज़ लेस देन 1 kg, नहीं। ऑप्शन डी इट इज़ इक्वल टू 500 ग्राम, वो भी नहीं होगा क्योंकि ये 1 kg। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू वेट अबाउट 1 किलोग्राम? 1 kg किसका वजन हो सकता है? क्रेयॉन बॉक्स तो नहीं होगा, ये क्लास 4 की बच्ची ये भी नहीं होगी, टी शर्ट ये भी नहीं लग रहा है, ए बोतल फिल्ड विथ वाटर ये हो सकता है 1 kg। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ब्लॉक्स आर देयर, एक के ऊपर एक 4 ब्लॉक्स रखा हुआ है और इनका हाइट कितना है? 32 सेंटीमीटर। सो 32 सेंटीमीटर 4 ब्लॉक्स हैं, सो एक ब्लॉक्स का हाइट कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। इसका होगा 8 सेंटीमीटर, इसका भी 8 सेंटीमीटर, इसका भी 8 सेंटीमीटर, इसका भी 8 सेंटीमीटर। अब 4 नंबर के ऊपर और एक 5 नंबर वाला ब्लॉक बनाते हैं।
इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे रख दिया। अब इसका हाइट कितना होगा, ये भी सेम 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। सो टोटल 8 5 जा 40 सेंटीमीटर। Question number 25. 1 apple, 2 oranges together weigh 330 grams. तो ये 1 orange weight 100 gram. This is also 100 gram. So 2 oranges are there. और राइट हैंड साइड में ये इक्वल कितना हुआ, 330 ग्राम। सो 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम इज इक्वल टू 200 ग्राम्स। सो 200 ग्राम के साथ और कितना होने से ये 330 ग्राम होगा, जो कि राइट हैंड साइड में इक्वल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 330 ग्राम माइनस 200 ग्राम इज इक्वल टू 031 130 ग्राम, वो एप्पल का वेट। थैंक यू।